اسلام میں جوانی کو ایک قیمتی امانت مانا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہاں جوانی کو اسلامی طریقے سے بتانے کے کچھ اہم پہلو دیے گئے ہیں۔ اللہ کی عبادت اور 5 وقت کی نماز جوانی کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ اسے اللہ کی تابعداری میں گزارا جائے۔ نماز کی پابندی، اپنی جوانی کو نماز کے ذریعے مضبوط کرے۔ توبہ، جوانی میں جذبات کی وجہ سے غلطیاں ہونا ممکن ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جن بچوں نے آج غلط راستہ اختیار کیا ہے، میں ایک دم بھی ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہ گناہوں کی لذت میرے عزیزو زیادہ دن تک نہیں رہتی تمہیں۔ اللہ نے آج جو جوانی عطا کی ہے، اتنی بڑی نعمت جانتے ہو؟ جوانی کا ایک لمحہ جب جایا ہو جائے، تمہارا ایک نطفہ بھی اگر جایا ہو جائے تو دنیا کے کروڑوں معزون مل کر کے وہ طاقت نہیں بنا سکیں گے جو قدرتی چیز ہے، جو رب تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملی ہوئی ہے، تم نہیں حاصل کر سکو گے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت کت ہے، طاقت ہے، میں رات میں جو چاہوں عیش کر لوں، اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کر لوں، تو یاد رکھیں نوجوانوں کی ایک خرابی جو ہمارے پاس آئی ہے، چاہے وہ مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو، تنہائی میں شہتوں کو پورا کرنا۔ فرمایا گیا کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کرتا ہے اور شب کو پورا کر کے نہاتا بھی ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ اس کے نہانے کے ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ شیطان سارے مل کر کے اسے گناہ پر ابھارتے ہیں۔ کیوں ہم یہ سلسلہ دراز کریں؟ ہم کیوں نہ صبر کر لیں؟ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان لاہری بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کس چیز میں؟ صرف کوئی مارے تو صبر نہیں، گناہوں پر صبر کرو، گناہوں پر اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ۔ مجھے بڑی خوشی حاصل ہے، بڑی خوشی حاصل ہے جن بچوں نے میرے کہنے پر انٹرنیٹ بند کیا تھا، رمضان مبارک میں پورے رمضان میں انہوں نے اسمارٹ فون نہیں یوز کیا، صرف اللہ رب العزت سے ڈر کر کے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں نہ موبائل کا مخالف ہوں، نہ انٹرنیٹ کا مخالف ہوں۔ میں نے کبھی اس کی مخالفت یہ نہیں کی کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل استعمال کرو۔ لیکن جس بچے کے ہاتھ میں ہم ماچس دیتے ہیں، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماچس کہاں لگائی جاتی ہے اور کہاں نہیں۔ کسی بچے کے ہاتھ میں ہم چاقو دے رہے ہیں تو اسے یہ بتانا چاہیے کہ چاقو کا استعمال کس کام کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر ایک آلہ آیا ہے موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، تو یہ جو بم سے دھماکے ہوتے ہیں باہر، اس سے کئی زیادہ خطرناک دھماکہ تمہارا یہ موبائل تمہارے ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ ہر رات ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ایمان تباہ کر دیا جاتا ہے، اخلاق بگاڑ دیے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہمارے پاس ہیں، جن کی راتیں خراب ہو چکی، جن کی جوانی برباد ہو چکی، جن کے آنکھوں کے نور ختم کر دیے گئے، جن کے ہاتھوں میں آج راشا داری ہے۔ ایک بچی ایسی کہ اس کے ہاتھ کانپتے ہی رہتے ہیں، کانپتے ہی رہتے ہیں۔ علاج کے لیے میں صرف یہ عبرت کے لیے چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، کسی کے عیب تمہارے سامنے کھولنا میرا مقصد نہیں، عبرت کے لیے کہ یہ تمام بربادیاں کیوں ہوئیں۔ انہوں نے ایک ہی ریز بتایا کہ ہم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے یہ گندی چیزیں دیکھنا شروع کیا تھا۔ آج ابلی پھر سے تمہارے ارد گرد منڈل آ رہا ہے۔ یہ فلم انڈسٹری پوری کی پوری ابلیس کے پجاریوں کی ہے، یہ شیطان کے پجاریوں کی ہے۔ یہ اب شیاطین ہے جو بناتے ہیں۔ یہ ہر وہ پارٹ مردوں کو دکھانا چاہیں گے عورت کا، جس سے ان کی خواہشات انگدھائیاں لے بھدج کے نہیں۔ یہ ان کو ایسی فلموں سے کوئی مطلب نہیں جس میں پورا مکمل سادگی کے ساتھ ہے۔ فلاپ ہے یہ چیز، ہاں، جس میں جتنے نمائش ہوگی اتنا زیادہ وہ ٹاپ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھیدیے کی طرح لوگ امدھچ پر ڈھاتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح سے ننگا جسم دیکھنے کی خواہش کی کرتے ہوئے امدش جاتے ہیں، وہ لوگ کتوں سے بھی بدتر ہے، کتوں سے زیادہ ذلیل ہے۔ کہ کتوں کے اندر جب شہرت آتی ہے تو وہ اسی طرح اپنی مادہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جانوروں کی صفات تمہارے اندر
अल्लाह ने जो अखलाक इंसानियत के अता की है, अपनी आंखों की हिफाजत करो, शर्म हया को अपनाओ। मैंने यह जो सख्त जुमला कहा है वो हर एक के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, हर एक के लिए। जो गलाजतें देखने के लिए भागता है वो कुत्ता नहीं है तो और क्या है, जिसको बेहयाई अच्छी लगती है। या तो फिर वो मक्खी है जो गलाजत पर बैठती है, अच्छाइयों पर नहीं बैठती। या तो कोई वो कुत्ता है जो मरी हुई चीजों को खाने को पसंद करता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, दुनिया जीत तालब किला, ये दुनिया मुर्दा गोश्त की तरह है और इसका तलब करने वाला कुत्ते की तरह है। मुझसे ये जुमला सख्त लगाना। मैंने कुत्ता कहा। मेरे आका ने सबसे पहले बयान फरमाया, मैं ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान बता रहा हूं। अल्लाह के हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तालिब को कुत्ता कहा है, कुत्ते की तरह है। होता यही है कि वो मुर्दा को खाने के लिए कुत्ता किस तरह से बढ़ जाता है, वो किसी दूसरे कुत्ते को उसमें बर्दाश्त भी नहीं करता, ना पूरा खा पाता है। इसी तरह से आज ये बेहयाई को तलब करने वाले कितनों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही है। हर नौजवान के साथ डिस्कशन में जो अहम टॉपिक है वो क्या है? औरत का टॉपिक। वो यह समझता है कुल मिलाकर के जिंदगी यही है और कुछ नहीं। मैं पूछता हूं तुमसे, क्या तुम इसी काम के लिए पैदा किए गए हो या अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ यही काम का हुक्म दिया है कि रास्तों पर खड़े रहो और हर आने जाने वाली पर तुम्हें जमाओ? क्या तुम्हें अल्लाह ताला ने इसी काम के लिए पैदा किया है कि औरतों को बेआबरू होते हुए देखकर तुम मुस्कुराओ? क्या तुम्हें रब ताला ने आंखें इसीलिए दी है कि औरतों की बेहयाई को तुम देखकर मजे लो? क्या रब्बेल जलाल ने तुम्हें ये तमाम कुत और जवानी सिर्फ इसलिए दी है कि उसके जमीन पर रहते हुए, उसकी कायनात में रहते हुए सीना तान करके मौला के खिलाफ तुम बगावत करते हुए गुनाह करो? किसकी ये जुर्रात है? रब ताला को तुम जीना दिखाते हो, मुंह दिखाते हो कि देख मौला तेरी दी हुई आंखें हैं और मैं कहां इस्तेमाल कर रहा हूं। याद रखना, जिस दिन मौला रबुल इज्जत जलाल में आए, फिर तुम्हारी आंखें क्या कुरान पाक में है? कुल सू मुल्क की आखिरी आयत, सूर मुल्क की आखिरी आयत। एक बुजुर्ग ने इसको बयान किया कि कौन है, अगर जमीन के पानी सूख जाए तो कौन दोबारा उस पानी को लाएगा? कुरान की आयत, जमीन के अंदर का पानी अगर सुखा दिया जाए तो कौन ये पानी लाएगा? तो एक लिबरल आदमी था, मॉडर्न आदमी, वो आया उस बुजुर्ग के पास, कहा कि ये कौन सी नहीं कोई बड़ी बात थोड़ी है, हमारे पास मशीनें हैं, पत्थर फोड़ करके भी अंदर से हम पानी निकाल लेंगे और 4400 फीट नहीं 500 फीट भी हम अंदर डाल के पानी निकाल लेंगे, पानी आ जाएगा। ये कौन से ताज्जुब की बात है जो कुरान कह रहा है कि पानी सूख गया तो नहीं आएगा? बताओ कौन सी जमीन से निकालना है, बताओ कौन सी जमीन से निकालना है? तो उन्होंने कहा अपनी दोनों उंगलियां उसकी आंख में डालनी। उसकी आंख में डाली तो उसकी आंख दर्द और बेकरारी शुरू हो गई, ऐसे कि उसकी आंखों में अब कुछ भी नजर नहीं आता था। सिर्फ उन्होंने आंख इस पर अपनी 2 उंगलियां लगाई। वो चीखते चिल्लाते बाहर इधर उधर उछल कूद कर रहा था। फिर वो बुजुर्ग के पास आया, कहा क्या हो गया, क्या हो गया मेरी आंखों को कि आपने सिर्फ 2 उंगलियां दिखाई? कहा तेरी आंखों का पानी सूख गया, तेरी आंखों का पानी सूख गया। कहा क्या करना है? कहा जमीन का पानी बाद में लाना, पहले अपनी आंखों का पानी ला। तू कह रहा है कि जमीन का पानी अगर सूख गया तो लाने में कौन सी दिक्कत है, मैं मशीनों से लाऊंगा। कहा जा तेरी आंखों का पानी सूख गया है, पहले तेरी आंखों का पानी ला करके दिखा ताकि तुझे रोशनी आ जाए, फिर जमीन के पानी की बात करते हैं। मेरे अजीजो रब तबारक व ताला जब चाहे किसी भी जरिए से तुम्हारी आंखों को सुखा दे, खत्म कर दे, तो जिंदगी भर के लिए हम माजूर हो जाएं। इसीलिए आज के दिन में मेरा सिर्फ यही मैसेज था, यही एक कि मैं पूरी कौम को लैलतुल कदर की इस अजीम साहित में यह अर्ज करना चाहूंगा कि बच्चे, जवान मर्द हो, औरतें हो, बच्चियां हो, ये तमामतों से अपने आप को बचाएं, ये तमाम गंदी बीमारियों से अपने आप को बचाएं, बेहयाई से अपने आप को बचाएं। और बचने का एक ही रास्ता है, जब जब तुम्हारे पास इस तरह का माहौल आए, सिर्फ एक ख्याल कर लेना कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, मैं रब तबारक ताला के हुजूर कैसे ये गलत चीजें करूं,
रब तबारक ताला मेरी इन तमाम बेहयाइयों से वाकिफ है। एक बार अगर तुम बच गए तो फिर तुम्हारे अंदर ईमानी कुत और हरारत वो आएगी, कसम रब्बे जुल जलाल की, जिस पर तुम निगाहें डाल दोगे मौला उसे तौबा की तौफीक अता करेगा। ये तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूँ। सरकार मुफ्ती तीज़म हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हा, यह वह वली कामिल का नाम है कि आप बयानात नहीं करते थे, बैठते थे। स्टेज पर जाकर बैठे हैं और मजमा हजारों का सिर्फ उनके चेहरे को देखा जिन्होंने आंखों में आंखें डाली। मजमे में से वो जिहाना चिल्लाना शुरू की, तौबा करने लगे। बयान किया, कुछ नहीं किया, और कितने तो तौबा किया और उनसे बैत कर गए। आज तक या तो वो फिर इस्लाह पर और हिदायत पर कायम है। उनमें से कई तो ऐसे हैं जो उल्मा सालन बने हैं, जो गुनाहों में जिंदगी गुजारते थे वो उल्मा वक्त बने, मुफ्तियाने कामिल बने। तो किस वजह से? एक मर्द कलंदर की आंखों में वो तासीर होती है कि उसकी आंखें भी अगर किसी के दिल पर पड़े तो मौला उसे विलायत का भी मुकाम अता करता है। वो नूर जाया होने न दे। हमारी आंखों के अंदर जो नूर है इसी की बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बुजुर्गों से यह सुना भी है और देखा भी है, मैंने देखा है। अब उसको मैं तफसील से अर्ज नहीं करना चाहता, सिर्फ ये है कि उसकी बरकत अल्लाह तबारक ताला हम सबके साथ कायम रखे कि हमारी आंखों की हया अगर बाकी होती है तो अल्लाह ताला अच्छे अच्छों पर हमारा रोब कायम करता है। हमारा रोब उनके ऊपर हाकी वक्त भी क्यों ना हो, वो कतराएगा आंख से आंख मिलाने से। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजेश करला ताला ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को क्या किया था? महबूब इलाही कहते हैं। बचपन में मैं 10-11 साल की उम्र का था जब बाबा फरीदुद्दीन ने आंखों में आंखें मेरे डाल के देखा था। गौर से मुझे आंखों में आंखें डालकर देखा था। मैं अपना घर भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, इसी दुर्वेश के पीछे लग गया। और इतना लगा कि अल्लाह के इस पाक वली बाबा फरीदुद्दीन ने निजामुद्दीन को कहां तक पहुंचाया? महबूब इलाही के मुकाम तक पहुंचा। वो मुकाम तक पहुंचाया आंखों में। तो ये हमने जो जाया किया है आज गुनाहों से आंखें, तो फिर ये हमारी आंखों का असर न हमारे बच्चों पर है, घर वालों पर, न हमारे आसपास किसी पर। हाँ, जिसकी आंखें महफूज हैं फिर वो देख ले, किसी को एक बार देख ले। सरकार गौसाम रदी अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, उस सहाबी तक भी कोई नहीं पहुंच सकता। गौस पाक फरमाते हैं, गौस पाक के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने वाले जो सहाबा जिहाद में वो जिन घोड़ों पर बैठकर जाते थे, उनके घोड़ों के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती थी वहां तक भी गौस का मकाम नहीं, गौस वहां तक नहीं पहुंच सकता। वक्त का सहाबी के दर्जे को किस वजह से इन्हें ये दर्जा मिला? मेरे अजीजों, जानते हैं आप ये बहुत इबादत करते थे, इसलिए ये बहुत रात गुजारते थे, कुरान की तिलावत करते थे, इसलिए नहीं, सिर्फ निगाहों से मुस्तफ़ा की जात को देखा था। निगाहों का ही कमाल है कि उन्होंने जो देखा था, मेरे आंखा को तो देखने का ये असर कि उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया गया। तो आंखें कुछ तो माना रखती हैं कि नहीं, हमारी निगाहों का कोई तो अहम मकाम है हमारी जिंदगी में। इसीलिए सरकार मुफ्ती आजम अल्लाह ताला ने दुआ भी की, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। रसूल पाक को अगर नहीं देखा उन्हें, जो उन्हें न देखा, तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अजीजा ने ग्रामी, इन आंखों की हिफाजत के लिए मैंने आज आपके सामने जो भी जुमले कहे, अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी कायम रखे। फिर से मैं गुजारिश करूंगा, कुरान पाक की आयात की तरफ मैं अगर आऊं तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। आज की इस मुकद्दस मजलिस में हजारों लोगों को तौबा करना है, हमें अल्लाह की बारगाह में लौट आने का वादा करना है। हमने रब्बे जुल जलाल अपनी निगाहों से जो तीर जलाए हैं गुनाहों के, वो मौला अगर आज चाहे तो हमें माफ कर सकता है, वो माफ करेगा, क्योंकि लैलतुल कदर में बेहिसाब लोगों की बख्शीश का ऐलान होता है। बेहिसाब लोग आज जहन्नुम से आजाद होते हैं। उन लोगों में काश हमारा नाम आ जाए। क्या सच्चे दिल से यहां मस्जिद में आप नहीं आए कि मुझे अल्लाह को राजी करना है? नहीं तो आप भी आज मार्केट में घूम रहे होते, बाजार की जीनत बने होते, शॉपिंग में आप दिलचस्पी ले रहे होते। वो सारी चीजें छोड़कर रात का इतना पहर गुजर जाने के बाद
آپ यहां पर बैठे सिर्फ एक आस और एक उम्मीद लेकर कि आज मैं अपने रब को मना करके जाऊंगा, तो बेशक आज मौला तबारक व ताला की रहमत के दरवाजे खुले हैं। वो अपने बंदों को तलब कर रहा है, बुला रहा है। तो हम में से कौन नहीं बढ़ना चाहता? हम बढ़ेंगे जरूर, और उसी के नाम का जिक्र करके, उसी को मना करके, काश अगर आज लैलतुल कदर हो। एक बार वो ऐलान करते मौला कि फला का बेटा जहन्नुम से आजाद है, फिर हमारी तो जिंदगी वसूल हो गई, हमारी तो जिंदगी वसूल हो गई। फिर उसके बाद कब मरे, कहां मरे, इससे हमें कोई फर्क नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बार बख्शीश का ऐलान कर दिया तो फिर गुनाहों से बचाना भी उसके जिम्मे कर्म पर है, वो खुद ही बचाएगा। जाहिर सी बात है, हम किसी को सेलेक्ट करें तो अब उसे देखना भी पड़ता है। जैसे मुफसिर शहीद हकीम उम्मत ने फरमाया है कि आदम अली सलाम को जन्नत से उतारा तो उतारने की दो किस्म में एक है फेंक दिया इसे, जाओ निकलो ना, और एक है जैसे डोल रस्सी में बांध के कुएं में कोई बंधा डालता है। किस लिए डालता है? पानी निकालने के लिए। मटके को रस्सी डाल के ऊपर से फेंकता है तो वो मटका क्या करता है? अंदर जाकर के पानी में डूबता रहता है। इधर उधर पानी जब भर जाता है तो फिर ऊपर वाला रस्सी खींचता है, तो रस्सी उसी के हाथ में है तो घड़ा ठीक है, सेफ है। चाहे जितना भी इधर उधर पानी में हिचकोले खाया हो फिर आ जाता है, क्योंकि मालिक के हाथ में रस्सी है। और अगर उसके हाथ से रस्सी छूटी तो उसी में वो घड़ा डूब के रह जाएगा, वहीं रह जाएगा। तो मुफसरीन ने फरमाया है, सैयदना आदम अली सलातो तस्लीम को अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भेजा उसकी मिसाल ऐसी है कि रस्सी अल्लाह ने खुद मजबूती से थामे रखा। ये नहीं कि दुनिया में उन्हें आजाद छोड़ दिया, हर बुराई से उन्हें बचाए रखा। और हर जगह घड़ा जब नीचे जाता है तो हम मट्टी कंकर से भी हिला हिला करके बचा लेते हैं। इसी तरह से आज रब तबारक ताला की बारगाह में यही दुआ करें, ऐ रब्बे झुल जलाल, तू हमारी रस्सी अपने दस्ते कुदरत में रख, हमको दुनिया दुनिया में आजाद और आवारा ना छोड़ कि हम अपनी मर्जी से जो चाहे करें। ऐ करीम खुदा, हमसे वही काम ले जो तू पसंद करता है, हमसे वही काम ले जिससे तू और तेरे नबी राजी हो, हमसे वो काम ना ले जिससे तेरा गजब होता हो और तू नाराज हो। और एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस रस्सी से जो जुड़ गया तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मौला जब वो खींचेगा हमें तो खींचकर सीधे वहीं भेजेगा जहां से हम निकल कर आए थे। कहां से आए थे? जन्नत से आए थे। हमारे माँ बाप का वतन वही है और सच्चा बेटा वही है जो अपने असली माँ बाप के घर पहुंचता है। रब्बे जुलत जलाल हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, हमें आंखों की हया अता फरमा, हमें हमारे दिल की तहारत अता फरमा, हमारी जुबान की सफाई अता फरमा। करीम खुदा, हमारे जिस्मों में शब्द की जो भी खराबियां हैं उसे तू दूर फरमा दे। मौला, जो गुनाह हो चुके हैं उन्हें माफ फरमा, जो आइंदा होने वाले हो तो उनसे तू हमें बचा ले। करीम खुदा, लैलतुल कदर की बरकतें सारे मजमे को अता फरमा। जो बच्चियां, औरतें, बहनें घरों में मौजूद सुन रही हैं मौला, उन सबको तू बेहिसाब मगफिरत फरमा, उनको नेक और साल खजलते अता फरमा, उन्हें आवाजगी और बेहयाई से तू हमेशा के लिए महफूज फरमा। आज के दिन खुसूसियत के साथ मौला तेरे दरबार में दुआ है कि जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, जो पिछले साल इस मस्जिद में मुसल्ली थे, मुतदी थे, आज वो कब्रों में है मौला, उनकी तू मगफिरत फरमा। ऐ रब्बे जलाल, इस मस्जिद को जिन्होंने जिस तरह से भी सजाया है, दामे दर में कदमे सुखने, जिस तरह से भी, उन सबको तू अपनी शान के मुताबिक अजील अता फरमा। मस्जिद की जिन्होंने बुनियाद रखी उन्हें भी, जिन्होंने तामीर में शुरू से हिस्सा लिया, जिन्होंने यहां पर खिदमतें की, जो चाहे इंतजामिया के एतबार से जितनी भी अब तक इंतजामिया आई, जो भी अराकीन बनते रहे, जो मुतवली सदर बनते रहे और जो इस मुसल्ले की इमामत करते रहे और जो इस मस्जिद से अजान पुकारते रहे और जो इस मस्जिद को साफ सफाई करते रहे, तमाम अमले के लिए मौला तेरे दरबार में गुजारिश है, उनको नेक और साल खजलते अता फरमा, उन्हें आवाजगी और बेहयाई से तू हमेशा के लिए महफूज फरमा। आज के दिन खुसूसियत के साथ मौला तेरे दरबार में दुआ है कि जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, जो पिछले साल इस मस्जिद में मुसल्ली थे, मुतदी थे, आज वो कब्रों में है, मौला उनकी तू मगफिरत फरमा। ऐ रब्बे जलाल, इस मस्जिद को जिन्होंने जिस तरह से भी सजाया है,
दामे दर में कदमे सुखने, जिस तरह से भी उन सबको तू अपनी शान के मुताबिक अजील अता फरमा। मस्जिद की जिन्होंने बुनियाद रखी, उन्हें भी जिन्होंने तामीर में शुरू से हिस्सा लिया, जिन्होंने यहाँ पर खिदमतें की, जो चाहे इंतजामिया के एतबार से जितनी भी अब तक इंतजामिया आई, जो भी अराकीन बनते रहे, जो मुतवली सदर बनते रहे और जो इस मुसल्ले की इमामत करते रहे और जो इस मस्जिद से अजान पुकारते रहे और जो इस मस्जिद को साफ सफाई करते रहे, तमाम अमले के लिए मौला तेरे दरबार में गुजारिश है सबको, तू बेहिसाब मगफिरत अता फरमा, अपनी शान के मुताबिक सबको अजरे जजल अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला खैरे मोहम्मद, आज एक आज तेरी दुआ कबूल हो, आमीन।